Hello, students. So, today I'm going to take up a new chapter, a new poem of ICSE syllabus, When Great Trees Fall by Maya Angelou. I hope this poem will really be helpful to you people. But before that, don't forget to like, share, and subscribe to this channel. So, this poem is an extended metaphor utilized to convey the death of great souls, great persons. जो बड़े लोग, great people मर जाते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है? Those people who nurture the world around them affects everything around them. जब वो लोग मरते हैं तो उनके जो आसपास के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उससे अफेक्ट होते हैं. So the poet has used the example of great trees in forest. जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जब वो गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा आसपास की सराउंडिंग्स में अफेक्ट होता है. So she is just using these great trees as metaphor. She says that when huge trees in the forest fall, the impact is felt far and wide in the woods, in the forest. So both large and small creatures are shocked, they are startled. सब हैरान परेशान हो जाते हैं जब बड़े बड़े पेड़ फॉरेस्ट में गिरते हैं. Similarly, the death of great individuals shake the world around them in their absence. जब बड़े लोग मरते हैं तो उनके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. The life-giving air appears scarce. कमी लगती है, सांस नहीं ले पाते हैं. So basically, Maya Angelou wrote this poem in response to the death of a friend who was also a renowned poet. He was a playwright and he had a lot of political associations also. His name was James Baldwin. So the speaker in the poem has metaphorically used the fall of great trees to compare the loss of great souls. बड़े बड़े ट्रीज जो गिरते हैं उनको कंपेयर किया है बड़े लोगों के डेथ से. एंड द इम्पैक्ट ऑफ विच इज फेल्ट फार एंड वाइड. भले वो बड़ा पेड़ गिरता है तो उसका भी इम्पैक्ट फार एंड वाइड होता है और सिमिलरली ग्रेट सोल्स के डेथ से भी फार एंड वाइड इम्पैक्ट होता है. So the readers are comforted by the assurance that others who have felt such pain have not only healed but have been made better human beings simply from having known the great souls. हम अगर ऐसे great souls को सिर्फ जान लें, सिर्फ पहचान लें, उनके इन्फ्लुएंस में आ जाएं, तो हम अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं. So let's begin with the poem now. When Great Trees Fall by Maya Angelou. When great trees fall, rocks on distant hills shudder. Shudder means shake suddenly. The lions hunker down in tall grasses. So, and even elephants lumber after safety. So the poem actually begins with the image from the world of nature. When big trees in the forest fall, their impact is felt far and wide. दूर दूर तक उसका impact आता है. The rocks on the distant, far off hill even feels the vibration and they also shudder. They also shake suddenly. That means shudder means shake. एकदम से काँप जाते हैं. So it suggests that landscape itself trembles with fear. पूरी धरती हिल जाती है जब दूर कहीं पे एक पेड़, बड़ा पेड़, बिग ट्री गिरता है. Similarly, lions crouch low and even elephants move slowly in search of safety. सब लोग crouch. Hunker का मतलब होता है crouch करना. So here we realize that the fall of great trees symbolizes the death of great persons. Just the way बड़े ट्री जब गिरते हैं दूर दूर तक vibrations feel होती है, in the similar manner when a great soul departs, the effect is felt for miles around and people of every sort, significant, insignificant, कैसे भी लोग हों, बड़े छोटे हर तरह के लोग, they feel despair and unsafe in some or the other peculiar way, strange way में वो लोग अलग अलग तरह से वो बहुत ज़्यादा डिस्पेयर फील करते हैं, बहुत सैड फील करते हैं, बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं.
सो हंकर का मतलब होता है क्राउच, दैट मीन्स जो शेर होते हैं वो भी डर जाते हैं. एंड लंबर का मतलब होता है मूव स्लोली एंड हेविली. सो बड़े बड़े इतने पावरफुल पीपल, जो शेर जंगल का राजा वो डर जाता है. जो एलिफेंट हैं, दे आर सो ह्यूज, दे आर सो पावरफुल, इवन वो धीरे धीरे चलते हैं. सो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि चाहे बड़ा इंसान हो चाहे छोटा हो, हर कोई इस पेड़ के गिरने से अफेक्ट होता है, उसकी वाइब्रेशंस फील होती हैं. इन द सिमिलर मैनर जब कोई ग्रेट सोल की डेथ होती है तो चाहे सिग्निफिकेंट इंसान हो इनसिग्निफिकेंट इंसान हो, एवरी वन फील्स सम और द अदर सॉर्ट ऑफ डिस्पेयर. सबको कुछ ना कुछ डर लगता है, लाइक इनसिक्योरिटी फील होती है. नेक्स्ट स्टैंजा. When great trees fall in forests, small things recoil into silence, their senses eroded down beyond fear. So here the poet says that the fall of big trees, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, have as much effect on small things as on the big ones. चाहे वो elephant हो, चाहे वो शेर हो, छोटी चीज़ें भी उतना ही डरती हैं. स्मॉल एनिमल्स आर ऑल्सो नम्ड, दे आर ऑल्सो बिनम्ड, वो भी शांत हो जाते हैं, वो भी नम्ब हो जाते हैं. दैट दे रिकॉयल इन टू टोटल साइलेंस, वो भी शांति में बिल्कुल रिकॉयल कर जाते हैं. इट मीन्स दैट द लॉस ऑफ ग्रेट मैन इज फेल्ट इमेंसली बाई इवन नोन, अननोन, इनसिग्निफिकेंट पर्सन. चाहे वो जानता हो ना जानता हो, इनसिग्निफिकेंट पर्सन को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ग्रेट सोल्स के डिपार्चर से. दे आर अनएबल टू एक्सप्रेस देयर डिसअपेयर, वो बता ही नहीं पाते हैं कि लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि जो ग्रेट सोल्स उनके डेथ से उनको क्या फ़र्क पड़ा है, बट कहीं ना कहीं उनको फ़र्क ज़रूर पड़ता है. सो रिकॉइल मीन्स ड्रॉ बैक, वापस चले जाना, वो लोग पीछे हट जाते हैं. एंड इरोड मतलब वॉर्न डाउन, खराब हो जाना. सो स्मॉल थिंग्स ऑल्सो रिकॉइल इन टू साइलेंस एंड देयर सेंसेस जस्ट गोज अवे. बहुत ज़्यादा फियर की वजह से उनके सारे सेंसेस इरोड हो जाते हैं, सब हट जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं. When great souls die, the air around us becomes light, rare, sterile. Rare means scarce and sterile means lifeless. We breathe briefly. Our eyes briefly see a hurtful clarity. Now the poet in the third stanza shifts from the use of metaphor of trees टू डायरेक्टली टॉक अबाउट द डेथ ऑफ ग्रेट सोल्स. अभी तक वो मेटाफर में ट्रीज का रेफरेंस लेते हुए बात कर रहे थे, अब वो डायरेक्टली ग्रेट सोल्स के बारे में बात कर रहे हैं. दैट व्हेन ग्रेट पीपल डाई, व्हेन ग्रेट पीपल की डेथ होती है, इट लीव्स अ वैक्यूम इन द लाइफ ऑफ द ब्रेव्ड. जो हम लोग हैं, जो हम बचे हुए हैं, उनकी लाइफ में एक वैक्यूम हो जाता है, खालीपन हो जाता है. एंड इट अफेक्ट्स द हार्ट ऑफ ऑल दोज हु हैव बीन टच्ड बाय द ग्रेटनेस इन सम और द अदर वे. जो ग्रेट पीपल हैं उनकी ग्रेटनेस से हर कोई कहीं ना कहीं से अफेक्ट, जो अफेक्ट हुआ है उसकी लाइफ में एक वैक्यूम आ जाता है. इट बिकम्स हार्ड इवन टू ब्रीद. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ से भले ही हमारा डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. हमारी लाइफ में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. इट बिकम्स हार्ड इवन टू ब्रीद. इन अदर वर्ड्स दे टेक स्मॉल और शैलो ब्रेथ्स. हम लोग सांस लेने में मतलब हर समय वी आर जस्ट रिमाइंडेड ऑफ दोज ग्रेट सोल्स. दे फील दे आर नॉट रियली लिविंग बट ओनली सर्वाइविंग. सब शैटर हो जाता है. हाय, ऐसा कैसे हो सकता है? सो हियर द स्पीकर सजेस्ट दैट द बेरेव्ड, दैट मीन्स जो लेफ्ट पीपल हैं, हम लोग जो हैं, find their senses overwhelmed by the loss of their loved ones. जो loved ones उनके loss से हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारे senses are filled with the love of those departed souls. वो लोग जिनकी डेथ हो गई है. Their eyes see only briefly. It suggests that most of the time after the death of a loved one, जब किसी हमारे प्यारे वाले पर्सन की डेथ हो जाती है, जो बचा हुआ पर्सन होता है, जो ब्रेव्ड होता है, दे सीम्स टू सी नथिंग एट ऑल. कुछ और उसको दिखाई नहीं देता है. एंड व्हेन दे सी इट बिकम्स टू पेनफुली क्लियर टू देम. वो जब उनको दिखाई देता है तो उनको सच में समझ में आता है दैट द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड फॉरएवर. पूरी ज़िंदगी अब चेंज हो गई है. अब उनको अपने बिलवड के बिना पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी. दैट थिंग विल नेवर बी सेम विदाउट द ग्रेट सोल्स. दे
आर ग्रीविंग, वो जो ग्रेट सोल्स है जिनके लिए वो ग्रीव कर रहे हैं, जिनके लिए उनको दुख हो रहा है, अब शायद वो ज़िंदगी उनको नहीं मिलेगी क्योंकि अब वो उन लोग के साथ वो टाइम, वो चीज़ नहीं स्पेंड कर पाएंगे. दे ऑल्सो फेस हर्टफुल क्लैरिटी. उनके सामने एक बहुत हर्टफुल सच्चाई सामने आती है, बहुत ही दुखदाई सच्चाई सामने आती है. दैट इज दे कम टू अंडरस्टैंड एज टू हाउ अ वैल्यूबल सोल हैज़ बीन लॉस्ट. हाय कितना अच्छा इंसान था, अब वो हमें कभी नहीं मिलेगा. तो ये एक क्लैरिटी है, ये एक रियलिटी उनके सामने आती है. सो he says that the mourning seems to intensify the memory by जो हम लोग mourn करते हैं, जो हम लोग दुख मनाते हैं, by making recollections. जो पुरानी चीज़ें हम जैसे जैसे सोचते हैं हमें और ज़्यादा दुख होता है, recollections suddenly sharp हो जाते हैं और ज़्यादा दुख होता है वो बंदे को जो पीछे रह जाता है. Our memory suddenly sharpened, examines, gnaws on kind words unsaid, promised walks never taken. So जो लोग बचे हुए हैं, जो bereaved हैं, they remember the moments spent with loved ones whom they have lost. उनको बड़ा दुख होता है, उनको अब याद आती है वो समय जो उन्होंने spend किया था. So here the word gnaws, this actually tells us, it actually tells us about a terrible emptiness. It tells us that हर समय हम लोग रिमाइंड होते हैं रियलिटी के कि वो पर्सन अब नहीं है. तो स्पीकर इज रेफरिंग टू द फीलिंग ऑफ रिग्रेट दैट ऑफन प्लेग्स अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट समवन. जो हमारे कभी किसी की डेथ हो जाती है आस पास वाले को, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है. एंड दिस रिग्रेट मे बी ड्यू टू द काइंड वर्ड्स अनसेड और द प्रॉमिस्ड वॉक्स नेवर टेकन. कई बार होता है अरे हम कर लेंगे, अरे हमने ये काश उससे बोल दिया होता, अब रिग्रेट हो रहा है, काश मैंने उस समय बोल दिया होता, काश जो हमने वॉक्स प्रॉमिस की थी, कहीं घूमने जाना था. सो दे एक्चुअली फील रिग्रेटफुल फॉर द kind words they should have spoken to the dear departed, or for the promised walk they could have done with their dear ones. लेकिन उन्होंने नहीं किया. क्यों? क्योंकि we are too busy with our lives. हम लोग अपनी लाइफ में इतने खो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि उस समय हमें वो इम्पोर्टेंट ही नहीं लगता है. लेकिन जब कोई हमारा डियर पर्सन दूर चला जाता है, देन वी रियलाइज काश यार ये कर लिया होता, तब हमें बहुत रिग्रेटफुल फील होता है. Great souls die and a reality bound to them takes leave of us. Our souls, dependent upon their nurture, now shrink winced. So here we can see that this stanza is beginning with great souls die, which suggests that death is an inarguable fact of life. हम उस पर आर्ग्यू कर ही नहीं सकते हैं. That is inevitable. आना ही आना है. So the loss of these souls ट्रूली ऑल्टर अ पर्सनस रियलिटी. सच्चाई बिल्कुल चेंज कर देती है बिकॉज देयर रियलिटी वॉज बाउंड टू दीज सोल्स. एक पर्सन किसी पर्सन से कनेक्टेड है, बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है. व्हेन सच सोल्स आर गॉन द वर्ल्ड अपीयर्स अनरिकग्नाइजेबल एंड टर्न्ड अपसाइड डाउन. पूरी दुनिया बदल जाती है. एक पर्सन जिससे आप इतना अटैच्ड हो, जिससे आप इतना लव करते हो, सडनली जब वो चला जाता है दुनिया बिल्कुल शैटर हो जाती है. लाइफ में कुछ बचता ही नहीं है. इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है. Our minds, formed and informed by their radiance, fall away. We are not so much maddened as reduced to the unutterable ignorance of the dark cold cave. So here the poet makes a comparison between great trees and great souls by saying that like great trees in the forest provide shelter, subsistence for many creatures. बड़े बड़े पेड़ shelter देते हैं, जीने का सहारा देते हैं बहुत सारे creatures को. In the similar manner, great people support and nourish those around them. जो great people होते हैं, जो उनके आस पास होते हैं, उनको support करते हैं, उनको help करते हैं, उनको nourish करते हैं. And when such people leave the world, और जब ऐसे ग्रेट सोल्स इस वर्ल्ड को छोड़ के चले जाते हैं, दोज लेफ्ट बिहाइंड आर रॉब्ड ऑफ दिस नरिशमेंट. अब कोई नहीं है उनको इस तरह का लव, सपोर्ट, नरिशमेंट देने के लिए. जिस द वे वो पेड़ अगर कट जाते हैं, फॉरेस्ट हट जाता है, तो वो जो एनिमल्स हैं वो बेकार हो जाते हैं. सो basically they feel their souls are suddenly starving and have shrunk to become like
सब कुछ श्रिंक हो गया है, श्रिवल अप हो गया है। क्यों? क्योंकि जब भूख है, कोई नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, तो सोल हमारा श्रिंक कर जाएगा। इन द सिमिलर मैनर, जैसे जब पेड़ हट जाएंगे तो एनिमल्स विल ऑटोमेटिकली डाई, दे लूज देयर माइंड विच वर फॉर्म्ड and informed by the radiance of those they have lost. Here यहाँ पे जो formed है and जो informed है, ये किसी चीज़ पे emphasize कर रहा है। ये क्या emphasize कर रहा है? The immense influence these great souls had on our lives. जो simple लोग हैं उनकी lives पे कितना ज़्यादा influence उनके उनके presence ने किया था। They did not simply inform the people but also shaped their way of thinking. They framed their minds. उनके mind को frame किया, उनको समझ सिखाई. So in other words, हम कह सकते हैं the death of those who have great effects on our lives, जिन ऐसे great souls जिनका हमारी life पे बहुत ज़्यादा effect है, leave us इमोशनली शैटर्ड. उनकी डेथ से हम लोग इमोशनली शैटर्ड हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता है. आवर माइंड्स विच वर शेप्ड बाय द इंटेलिजेंस सीम्ड टू फॉल अवे विद देयर डेथ्स. हमारे उनकी इंटेलिजेंस से जो हमारा माइंड फ्रेम हुआ था सब शैटर होने लगता है, सब खत्म हो जाता है. दैट्स वाई वी फील अ मिक्स ऑफ एंगर एज वेल एज डिसपेयर. We feel as if we had fallen into the dark cave ऑफ साइलेंट डिसपेयर. जो हम लोग कहते नहीं हमें डिप्रेशन हो रहा है, तो वी एक्चुअली फॉल इनटू द केव ऑफ साइलेंट डिसपेयर. लोग डिप्रेस्ड फील करते हैं, डिस्पेयर फील करते हैं, बिकॉज नाउ देर इज नो वन टू गाइड देम, टू नरिश देम, टू सपोर्ट देम द वे दोज ग्रेट सोल्स यूज्ड टू डू. We are not so much maddened. Maddened means to get crazy, as reduced to the unutterable ignorance of dark cold cave. Unutterable means we are not able to put into words. हम लोग बता नहीं सकते हैं. So हम ये कह सकते हैं that our minds which have been shaped by the intelligence seems to have fallen into dark cave of silent despair. हमारे जो माइंड है वो धीरे धीरे हम लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं उनकी डेथ की वजह से. कोई एकदम से हमारी लाइफ से जब चला जाता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा लव करते हैं, सडनली वी स्टार्ट फीलिंग लोनली एज इफ वी आर इन टू अ केव, डार्क केव, वी आर ऑल सराउंडेड बाई डिसपेयर, डिसअपॉइंटमेंट्स. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा. And when great souls die, after a period, peace blooms slowly and always irregularly. So the last stanza, like all those stanzas before, it also begins with an anaphora. Anaphora is a figure of speech जिसमें कोई word बार बार repeat होता है. So great souls die. So यहाँ पे great souls die बार बार repeat हो रहा है. And when great souls die. So and here conveys that the speaker is finally winding up things. अब conclusion पे आ रहे हैं. So here the speaker, instead of talking about immense grief at the loss of great souls, वहाँ पे यहाँ पे वो अब death के बारे में या great loss के बारे में बात नहीं कर रहा है. Here बात कर रही हैं. Here she is talking about what eventually fills in the empty spaces left behind by the great souls. अब जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है वो कैसे भरेगा, वो कहाँ भरेगा, कौन भरेगा. सो द पोएट हियर इज बिगिनिंग टू टेल दैट टाइम इज अ ग्रेट हीलर. टाइम जो है वो सबसे बड़ा हीलर है. विद द पैसेज ऑफ टाइम सब कुछ कितना भी कोई क्लोज क्यों ना हो, धीरे धीरे हम उससे उभर आते हैं. ऑल्दो वी नीड टाइम टू कम आउट ऑफ दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, बट टाइम इज अ ग्रेट हीलर. टाइम सबको अपने कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस हो उससे निकाल देता है. आफ्टर अ पीरियड पीस ब्लूम. सो टाइम को यहाँ पे पीस ब्लूम बोला है. ब्लूम सजेस्ट दैट हीलिंग फॉलोज ग्रीफ जस्ट एज स्प्रिंग फ्लावर्स इनएविटेबली फॉलो द. यहाँ पे ब्लूम जो है वो सजेस्ट कर रहा है हीलिंग पावर को. हीलिंग फॉलोज ग्रीफ जस्ट एज स्प्रिंग इज फॉलोड बाय द एम्प्टीनेस ऑफ विंटर. विंटर्स में सब कुछ डेथ हो जाती है, सब खत्म हो जाता है, लेकिन स्प्रिंग में क्या होता है, फिर सब कुछ आ जाता है. इन द सिमिलर मैनर टाइम इज अ ग्रेट हीलर. टाइम ब्लूम्स एवरीथिंग. टाइम सब कुछ सही कर देता है. स्पेसेस फिल विथ अ काइंड ऑफ सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस. आवर सेंसेस रिस्टोर्ड, नेवर टू बी द सेम, whisper to us.
So after the death of a great soul, our minds are restored to peaceful state, and slowly and irregularly. एकदम से नहीं हम peaceful state में आते हैं, धीरे धीरे slowly irregular intervals पे आते हैं. Sometimes the pain comes back to haunt us once again. जो हमारे पेन्स हैं वो फिर से आ जाते हैं, फिर हमें रिमाइंड करते हैं, बट धीरे धीरे इवेंचुअली विद पैसेज ऑफ टाइम सब सही हो जाता है. एंड व्हेन वी गेन आवर सेंसेस, जब हम अपने सेंसेस में आते हैं तो हमारी मेमोरी, इट स्पीक्स टू अस इन विस्पर्स. वो आके मेमोरी में, हमारे विस्पर्स में हमें याद दिलाती हैं क्या, दैट दीज ग्रेट सोल्स डिड एग्जिस्ट. ऐसा नहीं है वो चले गए हैं तो हम भूल जाएं, वो याद आते हैं. दीज मेमोरीज गिव अस होप दैट वी कुड बी बेटर. हम और अच्छा हो सकते हैं, हम और अच्छा कर सकते हैं. दैट वी कुड बी लाइक दोज ग्रेट सोल्स. हम उन्हीं की तरह लाइफ में अच्छा कर सकते हैं. हम देख सकते हैं लास्ट थर्ड लास्ट लाइन, दे एग्जिस्टेड. यहाँ पे दे एग्जिस्टेड रेपिटेशन है. इट एम्फसाइजेस दैट डेथ डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट दीज पीपल लिव्ड एंड शेड देयर रेडियंस ऑल अराउंड देम. ये एम्फसाइज करने के लिए है. एंड द एग्जिस्टेंस विल कॉन्टिन्यू to inspire the bereaved, that means जो left behind है, to keep on living and try to make the world a better place to live in spite of all the pains and all the sufferings. वर्ल्ड में हैं तो sufferings तो हैं ही, उसके बाद भी वो हमें इंस्पायर करते हैं कि हम अच्छे से रहें. And they suffered, although they have suffered a great loss, great souls गए हैं, उनको बहुत पेन है, sufferings है, लेकिन we should take inspiration from them and then we should lead, we should try to improve our lives in a better way. अगर वो चले गए तो उसका मतलब ये नहीं कि हम दुख में रहें, हम बहुत ज़्यादा सैड रहें. इसका मतलब ये है कि हम टाइम के साथ हमें उसे उभरना चाहिए, और विद पैसेज ऑफ टाइम वी शुड ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस डिफिकल्ट सिचुएशन. एंड ये हमें रिमाइंड करा रहा है बार बार दैट दोज पीपल एग्जिस्टेड ऑन दिस अर्थ, एंड दिस इज एक्चुअली दोज सोल्स वो वंस हियर, वो यहाँ पे थे, एंड दे had inspired a lot of people to live. जो भी लोग उनको जानते थे वो सबको इंस्पायर करते थे. in the similar manner we should also try to live and spread positivity जिस तरह से उन लोगों ने किया. so their memory actually gives us hope that we could do better, we could live better, and we could do a lot better in our lives. I hope this poem is clear to you all. If you have any doubts, please do ask me in the comment section. I'll try to answer all of them. But please, 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 I request you, do not forget to like, share and subscribe to this channel. This is your channel. I need your support for more such videos. Thank you so much. Bye.